Sometime I watch a pleasant sight of parents teaching their young children to learn to give. और मैं बहुत ही आनंदित होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि माता पिता जब अपने बच्चों को देना सिखाते हैं। They sometimes say we are baby has two chocolate. They normally children they don't like to give. और जब उनके एक बच्चे के पास 2 चॉकलेट होते हैं तो आमतौर पर बच्चों को देना पसंद नहीं आता है, But parents encourage them, give one, you give to the other baby. लेकिन माता पिता प्रोत्साहित करते उस बच्चे को जिसके पास 2 चॉकलेट है कि एक चॉकलेट दूसरे बच्चे को दे दो। But normally baby shy away from giving, avoid giving. और खास करके आमतौर पर बच्चा जो होता है थोड़ा सा पीछे हट जाता है, वो देना नहीं पसंद करता है। I believe in the same way God also wants to teach to be people who have a heart to give. वैसे ही मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर भी हमको सिखाना चाहता है कि हम देने वाले लोग बन सके, Because that is the heart of God. यही परमेश्वर का हृदय है। God is a generous God. परमेश्वर एक उदार परमेश्वर है, And when we become God's children, we will also progressively absorb that quality of being more and more और generous. जैसे हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, बढ़ते क्रम पर हम परमेश्वर के उस गुण को प्राप्त कर लेते हैं और आगे हम और उदार बनते जाते हैं। Jesus told something in Luke chapter 6 verse 38. और लूका रचित सुसमाचार 6:38 में यीशु ने इस प्रकार कहा, Give and it will be given to you. दो और तुम्हें दिया जाएगा, They will pour into your lap a good measure, pressed down, shaken together and running over. और लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। So that's a way as we parents teach our children to give. The Lord also wants to encourage us and teach us that principle of giving. और जैसे माता पिता के रूप में अपने बच्चों को हम देना सिखाते हैं, वैसे परमेश्वर चाहते हैं उस सिद्धांत को हम सीखे कि उदारता से हम दे सके, देना सीखे। Give and it will be given to you. दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। And very often it will be in shaken together and pressed down in abundance, it comes back. और अक्सर ये ऐसे लौटता है जैसे कि दबा दबा कर पूरा नाप हिला हिला कर उभरता हुआ हमारे पास वापस लौटता। We read a passage in Proverbs chapter 11, Proverbs 11, 24 and 25. नीति वचन उसका 11, 24 और 25। It says that there is one who scatters or gives yet increases all the more. 11, Proverbs 11, 24 and 25. नीति वचन 11 उसका 24 और 25। ऐसे जो छितरा देते हैं फिर भी उनकी बढ़ती ही होती है। And there is one who holds back what is justly due to be given, but as a result he is only in want. और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। We see that principle when you scatter, when you give, it increases all the more. और यहाँ पे सिद्धांत को देखते कि जब हम बढ़ोतरी के साथ जब हम देते हैं तो और बढ़ती ही आगे होती है। Jesus told this principle in another context. Freely, freely you have received. Freely, freely you give. और Learn to यीशु give. इसी संदर्भ में नए नियम के अंदर कहता है कि तुमने वास्तव में सेंत में पाया है, वैसे ही तुम आगे भी सेंत में ही दो। Verse 25 also, Proverbs 11:25 also we read, a generous man will be prosperous. और 25 वचन में उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। And this beautiful expression, beautiful phrase which says that he who waters others will himself be watered. बहुत ही सुंदर कथन यहाँ पर लिखा है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। Meaning, this principle of watering others is something we should learn. और इसका मतलब कि औरों को सींचने का जो सिद्धांत है उसको सीखने की हमें आवश्यकता है। When we see or sense a need around us जब हमारे आसपास हम किसी जरूरत को, आवश्यकता को देख पाते हैं and take it as an opportunity, तब हम उसको एक मौके के रूप में, एक अवसर के रूप में लें, and of course we can silently seek God's guidance. और तब हम बहुत ही शांत रूप से परमेश्वर के मार्गदर्शन को ढूंढ सकते हैं। Because even giving we should do in a way that is pleasing to the Lord. और हमें जो देना है वो इस रीति से करना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो सके। And when we do that, others are refreshed. जब हम उसे करते हैं
तब अन्य लोग उससे बहुत ही तरोताजा हो जाते हैं। And not only that, when we do that in a right time, when we are in it, it's like it that God will send somebody to help us to refresh us back. और उतना ही नहीं, जब हम जरूरत में होंगे तब परमेश्वर किसी और को भेजेगा हमें तरोताजा करने के लिए। It may be some other time, it may be some after some years. और हो सकता है कुछ सालों के बाद ऐसा हो सकता है। When we are in it, God will arrange supernaturally somebody to refresh us, to water us. और जब हम जरूरत में होंगे, आवश्यकता में होंगे, तो परमेश्वर उसके अलौकिकता के अंदर किसी और को भेजेगा हमें सींचने के लिए, हमें तरोताजा करने के लिए। When I was reading 1 Chronicles chapter 29, पहला इतिहास 29 अध्याय, this is in the context of David commanding, encouraging his son Solomon to build the temple in Jerusalem. और यहाँ पर दाऊद अपने बेटे सुलेमान को यहाँ पर उस मंदिर बनाने के निर्माण के संदर्भ में कुछ सूचनाएं देता है। It is a enormous work. ये बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा ये काम है। To build the temple in Jerusalem, it took years. और यरूशलेम के अंदर परमेश्वर के लिए भवन बनाना, मंदिर बनाना बड़े वर्ष लग गए। Lot of people, lot of resources were required. बहुत सारे स्रोत, बहुत सारे लोगों की उसमें आवश्यकता थी। So David as a person himself joyfully gave for the temple of और God. दाऊद व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए आनंद से उसने बहुत सारी वस्तुओं को दिया। And God's people, others also gave out of their joy. और परमेश्वर के लोग आनंद से बड़े उत्साह के साथ उन्होंने भी परमेश्वर के भवन के लिए दिया। So I want to share some verses, some expressions which blessed my heart. और कुछ वचनों को, अभिव्यक्तियों को आपके साथ बांटना चाहता हूं जिसने मेरे हृदय को आशीषित किया है। When I could see the heart of David. और जहां मैं दाऊद के हृदय को देख पाता हूं। First is 1 Chronicles chapter 29 verse 3. पहला इतिहास 29 अध्याय वचन 3। He says, in my delight to the house of my God I gave. फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण मैंने दिया। The reason why he gave is he delighted in the house of the Lord. और कारण ये था क्यों उसने परमेश्वर के भवन के लिए दिया, क्योंकि उसका मन परमेश्वर के अंदर आनंदित था। There was a good attitude inside him. उसके भीतर एक अच्छा स्वभाव था। He found joy being in the house of God. परमेश्वर के भवन में बने रहना, उसमें उसने आनंद समझा। That joy encouraged him to give और उसी आनंद के कारण वो प्रोत्साहित होता है देने के लिए, for the building work. और वो निर्माण के काम के लिए। And he also say in the same verse, I give to the house of my God above and all that and beyond I already provided. और वो आगे कहता है, मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया, सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोने चांदी के रूप में है परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूं। mean what he was due to give, he gave. Even beyond that he was willing to give. और जितना उसको देना चाहिए उतना तो उसने दिया, लेकिन उसके और अधिक जाकर भी वो देने की इच्छा रखता है। Meaning his mind was not very calculative. What minimum I need to give. इसका मतलब दाऊद का मन यहाँ पर हिसाब किताब रखने वाला नहीं कि कितना कम से कम मैं देकर छूट सकता हूँ। His attitude, even more than required, I will even give beyond. उसका स्वभाव है कि जितना आवश्यकता है उससे बढ़कर मैं देना चाहूंगा। We also read in verse 9 about the attitude of the people. और उसी अध्याय के 9 वचन के अंदर हम वहां के जो लोग हैं उनके स्वभाव को देखते हैं। People rejoiced because they had offered so willingly, for they made their offering to the Lord with a whole heart. तब प्रजा के लोग आनंदित हुए क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन अपनी इच्छा से परमेश्वर के लिए भेंट दी थी। No, even in Old Testament, that principle, if you give cheerfully, that comes out. और पुराने नियम के अंदर भी वो सिद्धांत हम देख पाते, जब आप देते हैं तो आप हर्ष और उत्साह आनंद से दे। Give only if you have a delight in giving. और आप तभी दे जब आप देने में प्रसन्नता को महसूस करते, आनंद को महसूस करते हैं, Not out of compulsion. और जोर जबरदस्ती से नहीं। And another principle which encouraged me in the same passage is और उसी वचन के अध्याय के अंदर एक और सिद्धांत जो मुझे प्रोत्साहित करता है, in verse 14. वचन 14। So when as David was liberally giving, है जैसे उदारता से दाऊद दे रहा था, he understood a truth. और यहाँ पर उस सत्य को उसने सीख लिया। He's saying it there, all things come from you and from your hand we have given you. और वो कहता है कि तुझी से तो सारी बातें मिलती है और हमने तेरे हाथ से ही पाकर तुझे दिया है।
saying, what he's indirectly saying, I cannot take any credit for this, Lord. और वो इस प्रकार कह रहा है, प्रभु ये जो तूने दिया है उसमें कोई श्रेय मैं नहीं ले सकता। I have given out of what I received from you. जो कुछ तूने मुझे दिया है उसमें प्राप्त करके ही मैं दे रहा हूँ, And from your hand only, from what you have given only, I am giving. और तेरे हाथ से पाकर जो मैंने पाया है उसमें से ही मैं दे रहा हूँ। I am only sharing in your nature. और प्रभु मैं तेरे उस स्वभाव में सहभागी होना चाहता I हूँ, cannot take a credit because I am giving. और क्योंकि मैं दे रहा हूँ उसमें कोई श्रेय कोई तारीफ मैं नहीं ले सकता। That's a good thing to remember. ये अच्छी बात है याद करने के लिए। Same thing is repeated in verse 16 also. और 16 वचन में भी इसी को दोहराया गया है। It is from your hand and all is yours. और प्रभु तेरे ही हाथ से हमें मिला है और सब तेरा ही है। I remember many years back, कुछ वर्षों पहले मुझे याद आता है, something which somebody told about giving, it stuck in my और heart. कुछ एक भाई ने मुझे देने के संबंध में कहा था जो मेरे मन में रह गया, I think I was not even a believer at that time. और तब मैं एक विश्वासी भी नहीं था। It is, this is what he said, when every month, when salary check comes, और जब yeah, हर महीने जब वो सैलरी का चेक मुझे मिलता है, I keep that on my hand. उसको मैं अपने हाथ में रखता हूँ, And I asked my wife also to place her hand above it. और मैं अपनी पत्नी को भी कहता हूँ कि वो भी उस चेक के ऊपर मेरा उसका हाथ रखे। And we both really thank God for this money which God has given us. और हम दोनों मिलकर परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देते जो पैसा परमेश्वर ने हमको दिया है उसके लिए। Because we reckon it is the Lord who gave this and we want to magnify Him, we want to express our gratitude. और हम जानते कि ये परमेश्वर ही है जिसने हमें दिया है, और हम उसको धन्यवाद के साथ उसको महिमा और उसको ऊंचा करना चाहते हैं। And I added, before I use it for anything else, I give to the Lord's work. और वो भाई इस प्रकार कहते कि इससे पहले कि मैं उसको खर्च करना आरंभ करूं, उसमें से मैं पहला भाग परमेश्वर के भवन और परमेश्वर के लिए मैं देना चाहता हूं। That it really encouraged me. उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। That attitude to thank God and acknowledge whatever we have received, it has come from the Lord. It is the Lord who has put us that in our hand. और ये परमेश्वर ही है जो हमारे हाथ में वो रखता है, वो धन्यवाद देने वाला स्वभाव है। And even when we give, it is from there what God has put on hand that we are giving. और वो परमेश्वर जिसने हमारे हाथ में वो सारी चीजें रखी, उसी में से हम परमेश्वर को देते हैं। We read this beautiful, well-known example in Luke 21. लूका उसका 21 अध्याय में एक बहुत ही उत्तम उदाहरण को हम देखते हैं। There, interestingly, Jesus was watching how people were putting money in the offering box. और दिलचस्प रूप से यीशु मसीह वहां पर लोगों को देख रहा था कि कैसे लोग उस दान के बक्से के अंदर कैसे दान को दे रहे थे। And he saw a poor widow. और वहां पर एक गरीब विधवा को यीशु ने देखा, And she said 2 little copper coins into the offering box. और उस ऑफरिंग बॉक्स के अंदर ये विधवा ने उस 2 दमड़ियों के या 2 सिक्के जो थे वो उसको उसने डाला। Jesus commented quickly something on और that. यीशु मसीह तुरंत उसको सराहता इस प्रकार कहता That है, in Luke 21 verse 20, Luke chapter 21 verse 3. और लूका 21:3 में He said, truly I say to you, this poor widow put in more than all of them. तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। And he said, others have put out of their abundance, but this poor widow gave all that she had. आगे 4 वचन, क्योंकि उन सभी ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। So when I read this word, she probably numerically she put the lowest amount. और हो सकता है कि संख्या के रूप में उसने सबसे कम संख्या या उस पैसे को उसने डाला होगा। But what did Jesus say? लेकिन यीशु क्या कहता है? This poor widow put in more than all of them. लेकिन इस गरीब विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। Meaning God is not looking at the amount. इसका मतलब परमेश्वर उस अमाउंट को उस संख्या को नहीं देख रहा है, God is looking at our heart to give. लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय जो देने वाला उसको देखता है। That poor widow, even though she was poor, she has such a large heart. और यहाँ पर ये कंगाल विधवा भले वो गरीब थी, लेकिन एक बहुत ही उदार हृदय उसके पास था। She learned to trust God for her living. और उसके जीवन के लिए, उसकी जीविका के लिए उसने परमेश्वर सबसे पहले भरोसा रखा। So she did not try to hold back anything for herself. और अपने आप के लिए सारी चीज को उसने एकत्रित या उसको संग्रह करने की कोशिश नहीं So it's की। a beautiful thing. Somebody who gave so little, about Jesus saying she gave more than all. कितनी सुंदर बात है कि जिस व्यक्ति ने बहुत ही कम दिया संख्या के रूप में, लेकिन यीशु कहता है उसने सबसे बढ़कर दिया है।
In Acts chapter 30, प्रेरितों के काम, here Paul, when he was talking to the Ephesian believers, और यहाँ पर पौलुस जो है वो इफिसियों की पत्री लोगों से बात करता है, and there he's saying, I labored with my own hands. और वो कहता है कि मैंने अपने स्वयं के हाथों से मेहनत की है, I did not rely on others. मैं अन्य लोगों के ऊपर मैं वहां पे निर्भर नहीं रहा हूँ, For me and people who were with me, I depended on my hard work. और मैं अपने जो कड़ी मेहनत जो मैंने की है, मैं अपने स्वयं के ऊपर ही मैं निर्भर रहा हूँ, And in this manner, I learned to help those who are weak. और इसी प्रकार से जो लोग कमजोर हैं उनको मैंने सहायता करना सीखा And है। he's saying something. I remember the words of the Lord Jesus that he himself said, it is more blessed to give than to receive. और वहां पे प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 35 वचन में लिखा है, वो कहता है यीशु के वचन स्मरण करता हूं, और वहां लिखा है कि लेने से देना धन्य है। It's a very blessed spiritual truth. और ये बहुत ही आशीषित एक आत्मिक सत्य है। You know, when we are in need, we receive something from God and something other. It's a blessing. God provides it. और जब हम जरूरत में होते हैं, हम याद करते हैं कि हमने परमेश्वर से कुछ प्राप्त किया है, वो बहुत ही आशीषित वो बात है। Receiving is also a blessing. अब प्राप्त करना ये भी एक आशीष है, Because when we need, God provides it. और जब हमारी जरूरत होती है परमेश्वर हमको पूरा करता है। But Jesus is saying something still better. लेकिन यीशु कहता है उससे भी कुछ बेहतर है, It is more blessed to give than to receive. और लेने से देना धन्य है। It's a truth we should cherish in our और hearts. हमारे हृदय में इस सत्य को हमें संजोए रखना है। As it is more blessed to give, Lord, I want to be a person who has a heart to give. और प्रभु यदि लेने से देना धन्य है, तो मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं प्रभु जो देना जानता हो। In every area of my life, I want to be giver more than expecting others to give me. और प्रभु मेरे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु किसी भी अपेक्षा के बिना किसी से मैं देना चाहता हूं। I want to find joy in opportunity to give than others give to me. और प्रभु मैं ऐसे अवसर में आनंद को प्राप्त करना चाहता हूं प्रभु, जहां पर उस मौके में देना जानूं, न कि लेना प्रभु। That's a wonderful attitude we can nurture inside us. और ये बहुत एक अद्भुत स्वभाव है जो हमारे अंदर हम विकसित कर सकते हैं। Sometime, no, sometimes a kind of surprise come to my heart. और कई बार मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है मेरे हृदय में। In the book of Corinthians, और कुरिन्थियों की मंडली में Paul is devoting 2 entire chapter on the principles of giving. और यहाँ पर पौलुस 2 पूरे अध्याय को यहाँ पर लिखता है देने के संबंध में। That is 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9. दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय और 9 अध्याय। When you get time, I will encourage you to read. It is a good 2 chapter you can take for 1 week of meditation. और ये 2 अध्याय दूसरा कुरिन्थियों 8 और 9 अध्याय जब आपको समय मिलता है जरूर आप उसको घर जाकर पढ़े। इस सप्ताह के अंदर आप इसको एक मनन का विषय बना सकते There हैं। are some pearls we can get from there. और इन वचनों से आप कुछ मोती को प्राप्त कर सकते हैं। So in 2 Corinthians chapter 8, in the beginning verse, he speaks about Macedonian Christians. और यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय के शुरुआती वचन में पहले अध्याय में मकदूनिया के विश्वासियों के बारे में बात करता है। Macedonian Christians. मकदूनिया के विश्वासी, Yeah, they were poor Christians. He's saying they were poor people. और यहाँ पर बहुत ही वो गरीब लोग हैं यहाँ पर। But in verse 2, it says that the abundance of joy and the deep poverty overflowed in the wealth of their liberality. वचन 2 की क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। One say they were literally poor, और एक तरफ जो था वो इतने बहुत ही गरीब, बहुत ही कंगाल वो थे, but at the same time they were very joyful people, joyful in the Lord. लेकिन दूसरी ओर वो बहुत ही आनंदित लोग थे, परमेश्वर में, प्रभु में आनंदित लोग। But they had a wealth of liberality. They had such a heart and desire to give. लेकिन उनके भीतर एक खजाना था, एक उदारता का, वो इतनी अधिक इच्छा रखते थे देने के लिए। And it's saying that they were begging Paul that allow us also, even though we are poor, allow us also to participate in this giving. और यहाँ पर जैसे कि वो भीख मांग रहे हैं, जैसे कि पौलुस से कि हमको भी अनुमति दे, अवसर दे पौलुस कि हम भी कुछ इसमें दे सके, इसमें दान दे सके। Yeah, that's in verse 4. They were begging with Paul that
urging them. He was also a favor of participation. और जैसे 4 वचन में इस दान और पवित्र लोगों की सेवा करने में प्रभु हमें भी वो अवसर दे, उस बात की पौलुस से विनती करते हैं। Participation in support of saints. और यहाँ पर संत लोगों को सहायता करने के अंदर वो सहभागी होने की इच्छा रखते थे। Good to know that principle of participation. और यहाँ पर वहां पे सहभागी होने का जो सिद्धांत है उसको जानना अच्छी बात है। I also want to be a part of it. और मैं भी उसका एक भाग बनना चाहता हूँ। I don't want to let others do it. मैं नहीं चाहता कि हाँ अन्य दूसरे लोगों को करने दो, चलता है। Whatever is little, I want to be part of it. लेकिन मैं कुछ भी छोटे से छोटा भी हो, मैं उसका एक अंग, एक भाग बनना चाहूंगा। And Paul is commenting on they first gave themselves to the Lord. Not only that, they themselves to the church. और यहाँ पे जैसे पौलुस कहते हैं कि सबसे पहले इन लोगों ने अपने आप को परमेश्वर को दिया, उतना ही काफी नहीं था, इन लोगों ने अपने आप को कलीसिया को भी अपने आप को पूरी तरह से सौंप दिया। So it's a good principle. As we once said, learn to give ourselves to the Lord. We should remember, I also belong to my brothers and sisters. और ये बहुत ही अच्छा सिद्धांत है कि एक तरफ हम परमेश्वर को अपने आप को सौंप देते हैं, लेकिन दूसरी ओर हम कलीसिया को, अपने भाइयों और बहनों को भी अपने आप को पूरी तरह से सौंप देते हैं। Learn to give ourselves to the Lord and learn to give ourselves for others, making ourselves available to others. और परमेश्वर को पूरी तरह से अपने आप को दे देना और कलीसिया को, अन्य भाई बहनों को भी अपने आप को दे देना, उनके लिए उपलब्ध अपने आप को कराना। In verse 12 in the same chapter, उसी अध्याय के 12 वचन में हम पढ़ते हैं, verse 12 is said that if the readiness is present, it is acceptable according to what a person has and not according to what he does not have. वचन 12, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। So God is looking at our readiness, परमेश्वर हमारी जो तैयारी है उसको देखता है, not on what physically we are able to give. और ये नहीं कि हम भौतिक रूप से क्या दे सकते उसको नहीं देखता है। In the New Testament, everything originates from inside. नए नियम में सारी चीजें जो है वो हमारे भीतर से आती है। What our thoughts, what our motives, what our attitudes. और हमारे मन में विचार क्या है, क्या हमारे इरादे हैं, क्या हमारे स्वभाव पाए जाते हैं। So we can sometime, we can examine ourselves. और कई बार हम अपने आप को जांच सकते हैं। Am I a very stingy person? क्या मैं बहुत ही कंजूस व्यक्ति हूँ, Calling on everything to myself? सारी चीजों को बस अपने आप में जकड़े हुए रखता हूँ, Or slowly I am transforming to be increasingly a giver? और क्या मैं धीरे धीरे करके बढ़ते कदम पर एक देने वाला बनते जा रहा हूँ। In this chapter, there's a very important principle that is coming out. और इसी अध्याय के अंदर बहुत एक सुंदर सिद्धांत निकल कर आता है। That is in chapter 9 verse 7. दूसरा कुरिन्ती 9 अध्याय वचन 6 में हम उसको पाते हैं। 2 Corinthians chapter 9 verse 7 दूसरा कुरिन्ती 9 अध्याय वचन 6 says that each one must do just as he has purposed in his heart. हर एक जन जैसा मन में ठाना है वैसा ही दान करे। And he's expanding, never grudgingly, never under compulsion. वचन 7 में लिखा है, न कुड़कुड़ के न दबाव से। Meaning grudgingly, if you're unhappy, don't even think about giving. यदि आप आनंदित नहीं हैं तो आप देने के बारे में सोचे भी नहीं। If somebody is under pressure, never ever give because there is a pressure on him. और यदि आपके ऊपर कोई दबाव है तो कभी भी आप उस दबाव से देने के बारे में बिल्कुल ना सोचे। And I really like this expression. God loves a cheerful giver. यहाँ पे मुझे अभिव्यक्ति बहुत पसंद आती है। 7 वचन के अंतिम भाग में, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। God loves a cheerful giver. परमेश्वर आनंद से देने वाले से प्रेम रखता है। That is how God is. God is a cheerful giver. परमेश्वर, यही हमारा परमेश्वर, वो हर्ष से देने वाला परमेश्वर है। God wants his children to be cheerful givers. और परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे, उसके संतान भी हर्ष से देने वाले संतान बने। So in the New Testament, giving always based on cheerfulness. और इसलिए नए नियम में देना हमेशा हर्ष से देने से पर ही निर्भर करता है। Anything if you give, do it cheerfully, otherwise don't do it. और यदि आप हर्ष से, आनंद से करके बढ़कर ही कर सकते हैं तभी आप करें, अन्यथा न करें। God is pleased whatever we do, only if we are able to do it cheerfully with our whole heart. और यदि हम अपने संपूर्ण हृदय से हर्ष से करते हैं तभी ही परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। It's something which you can rejoice if that God is seeking and loving people who gives cheerfully. और परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है जो पूरे आनंद से, हर्ष से देना जानते हैं। And
there's a saying like charity should begin at home. और ऐसी कहावत है कि जो चैरिटी जो है वो परिवार से एक घर से उसकी शुरुआत होती है। There's a verse which says that in uh, 1 Timothy chapter 5 verse पहला 8 तिमुथियुस 5 अध्याय वचन 8 says that if anyone does not provide for his own and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. पहला तिमुथियुस 5:8 पर यदि कोई अपने रिश्तेदारों की विशेष रूप से अपने परिवार की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। That is a great principle that we should start this at home. और ये बहुत एक अच्छा सिद्धांत है, हमें घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। I remember when I studied, finished my studies, came to Bombay. और जब मुझे याद आता है कि जब मैंने पढ़ाई मेरी समाप्त हो गई, जब मैं मुंबई में आया When I got my first job, very small salary. और जब मेरा पहला मुझे सैलरी मिला तो बहुत ही कम, उसके अंदर वो सैलरी बहुत ही कम सैलरी था। But I learned the principle of contentment in what God has given. लेकिन मैंने परमेश्वर ने जो दिया उसमें संतुष्ट रहना, उस सिद्धांत को अच्छे से सीख लिया था। And I remembered my parents sacrificially educated me. और मुझे याद आता है कि मेरे माता पिता ने बड़े बलिदान के साथ मुझको पढ़ाया था। And that is how I got a job now. और उसी कारण से मुझे अभी नौकरी मिली है। And I knew that they were in need. और मैं जानता था कि मेरे माता पिता जरूरत में हैं। So I make every effort to as maximum as possible to send money to my parents. और जितना हो सके, जितना संभव हो सके, अधिक और अधिक उस पैसों को मैं अपने माता पिता को भेजने का प्रयास करता था। And I was happy to postpone my own legitimate needs. I can wait for next way, but my parents I should give first. और मैं इससे बड़ा आनंदित होता था कि मेरी उचित जो जरूरत है उसको मैं आगे पूरा कर सकता हूं, लेकिन उसके बजाय मैं अपने माता पिता को पैसा भेजना बड़ा आनंद की बात समझता था। I found joy in my heart to do it because their sacrifice I have a better living now. इस बात को देना मुझे बड़ा आनंद की बात मेरे हृदय में लगा, क्योंकि उनके बलिदान के कारण ही आज मैं इस नौकरी में लग पाया हूं। So that's an important principle where need is there with the parents. We should liberally help and support because they sacrifice their things to educate us. और ये बहुत एक अद्भुत यहाँ पर एक सिद्धांत है, हमें माता पिता की सहायता करनी चाहिए, तो क्योंकि उन्होंने बड़े बलिदान के साथ हमको यहाँ तक बढ़ाया है, पढ़ाया है, तो हमें आनंद के साथ उनके लिए देना चाहिए। Something which I helped me is an expression in 1 Timothy chapter 6. पहला तिमुथियुस 6 अध्याय Here, verse 18. उसका 18 वचन। He's saying that there is an expression is willing to share. That is an expression written there. और यहाँ पर जो हमारी देने की जो इच्छा होती है उसके संबंध में लिखा गया है, Be generous and willing to share. और वहां लिखा है कि हम उदार बने और हम उदार देने की इच्छा भी रखें। Whenever God has blessed us, when we have enough, जब भी परमेश्वर ने हमको आशीषित किया हो, हमारे पास हमारी जरूरतों के लिए पर्याप्त हो, we should develop this virtue of being generous. हमें इस गुण को विकसित करना चाहिए, उदार बनने का गुण। Being sensitive to the need of others. अन्य लोगों की जरूरत के संबंध में बहुत ही हम सेंसिटिव बन सकते हैं। And be willing to share according to God's will. और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम वहां पर बांट सकते, साझा कर सकते हैं उनके साथ। That willingness to share is a very important thing. और यहाँ पर बांटने का या उनके साथ देने की जो इच्छा जो होती है बहुत महत्वपूर्ण है। Paul, after teaching many believers in many churches, और पौलुस अन्य बहुत सारी कलीसिया के अंदर सिखाने के बाद he is telling something. इस प्रकार वो कहता है, Don't think that I am teaching you because I am expecting something from you. और वो ये सिखाता है कि मैं देना तुम्हें सिखा रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुमसे कुछ अपेक्षा कर रहा हूं। I don't want any contribution to my personal needs. और मेरी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए मुझे कोई भी तुम्हारा योगदान या दान नहीं I चाहिए। don't need anything from you for my ministry. और मेरी सेवकाई के लिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। But I am teaching you for your own benefit. और मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूं कि आपके खुद के भलाई और फायदे के लिए मैं इसको सिखा रहा हूं। If you learn to give, it is good for you. यदि आप देना सीखते हैं तो ये आपके लिए ही भला है। He's saying that in Philippians chapter 4:17. और फिलिपियों की पत्री 4:17 के अंदर कहता है, I seek for the profit which increases to your account. यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। So I am telling all this openly
2 chapters I wrote about giving, not that with a wrong motive to something for me or my ministry. और बड़े खुले हृदय से मैंने इन वचनों को तुम्हें बताया है। देने के बारे में 2 अध्याय पूरे मैंने लिखे हैं कि इस कारण से मैं मनसा नहीं रखता हूं कि तुम कुछ मेरी आवश्यकता या मेरी सेवकाई के लिए कुछ तुम दो। My only intention is it will bless you. It is for your profit. मेरी यही इच्छा है कि मैं चाहता हूं कि तुम इससे फायदा पाओ, तुम्हारी इसमें तुम्हारी भलाई हो। New Testament, Jesus told some principles in giving. और नए नियम के अंदर यीशु मसीह ने देने के संबंध में कुछ सिद्धांत हमको सिखाए हैं। Very important to be reminded and be warned. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम इसको स्मरण करें और उससे हम एक वार्निंग भी पाए। Matthew chapter 6, मत्ती उसका 6 अध्याय verses 1 to 3. उसका 1 से 3। So first of all, he is saying that beware. He is saying warning, beware in, we can say, giving before men to be noticed by people. और पहले वचन में सबसे पहले सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम न करो। You are giving, that is true. आप दे रहे हो, अच्छी बात है, सत्य बात है, But you are trying to give with a wrong motive. लेकिन एक गलत एक मोटिव के साथ, मनसा के साथ, इच्छा के साथ आप उसको दे रहे हो। You are giving, but your motive is to derive a honor, to be known as a generous person. आप दे तो रहे, लेकिन आपके जो इरादे हैं वो सही नहीं है। आप चाहते हैं कि आप एक उदार व्यक्ति के रूप में जाने जाइए, आपको आदर मिले। Don't do it before people to be noticed by them. आप लोगों को दिखाने के लिए इन कामों को न करें कि लोग आपको देखें। I am reminded, in our housing society there are many benches. और यहाँ पर हमारे हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बहुत सारे बेंच होते हैं रखे हुए वहां पर। In every bench there is a marble, it's written donated by so and so. और हर एक बेंचेस के ऊपर ऐसा लिखा होता है डोनेटेड बाय ये फलाने व्यक्ति के द्वारा डोनेट किया गया No, we है। don't blame them, but we cannot. That is in our flesh. If I donate something, it should be known I donated it. और ये उनको हम दोष नहीं देते, ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। यदि मैं कुछ देता हूं तो वो पहचाना जाना चाहिए। Jesus warned, this is there in our flesh. Work against it. और यीशु मसीह ने हमें सावधान रहने के लिए कहा, ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, इसके विरोध में हमें काम करने की जरूरत है। Beware about that attitude, giving before people with the knowledge of people so that you get a name. और सावधान रहना है कि हम मनुष्य को दिखाने के लिए, उनसे आदर पाने के लिए नहीं देते हैं। And he's saying that if you do like that, you already received, you have no receive to be expected from the Father. और यदि हम ऐसे ढंडोरा पीट के अगर देते हैं तो हम स्वर्गीय पिता से कोई प्रतिफल नहीं पाएंगे। He's explaining that verse 2, Matthew 6:2. और 6:2 उसके 2 अध्याय में इस वचन को वहां पे सिखाता है। Matthew 6 verse 2. 6 वचन 2 के अंदर, When you give to the poor, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may be honored by men. इसलिए जब तू दान करे तो अपना ढिंडोरा ना पिटवा, जैसे कपटी आराधनालय और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। Yeah. So if you have received honor from people, you have received the reward, nothing to be expected from God. और यदि आपने लोगों से आदर पा चुके हैं तो आपने प्रतिफल आपका पा लिया। अभी आप परमेश्वर से पाने के लिए आपके पास प्रतिफल कोई नहीं है। You decide, you want honor from people or you want honor from God. आप तय करें, आप निर्णय ले कि आप मनुष्य से प्रतिफल पाना चाहते हैं या परमेश्वर से प्रतिफल पाना चाहते हैं। If you are seeking and if you have received honor out of giving from honor from people, you have nothing to be expected from यदि God. देने के द्वारा आप लोगों से, मनुष्य से आप आदर को प्राप्त करते हैं, तब परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए आपके पास कोई प्रतिफल नहीं होगा। And he's emphasizing in verse, it's a very important verse, Matthew chapter 6 verse 4. उसका 4 वचन, Your giving should be in secret. ताकि तेरा दान, तेरा देना गुप्त में रहे। You cheerfully give, पहले हर्ष से आप दो, and but remember that your giving should be in secret. बट याद रहे कि तुम्हारा देना गुप्त में रहे। Your attitude should be only God. Only God should know about it. How much I gave or what I gave, to whom I gave. और यहाँ पर केवल परमेश्वर ही को हमें पता चलना चाहिए कि कितना मैं दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, किस प्रकार मैं दे रहा हूँ। And the Father who sees what you did in secret will reward you. तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। A godly person who is in touch with God will desire reward from Father. He will try his best to make sure that his giving is not known to anybody. और एक ईश्वरीय जन जो परमेश्वर के साथ संबंध या संपर्क में रहता है, वो हमेशा चाहेगा कि वो हर बात में परमेश्वर से ही प्रतिफल को प्राप्त करे।
So this is a very important thing that we have to pride. If you give, as there is an encouragement to give, remember that it should be done secretly. और इस बात को याद रखना अच्छी बात है कि जैसे हमें प्रोत्साहित किया जाता है देने के संबंध में, याद रखें कि हम उसे गुप्त में ही दे। I should give with my sincere desire, Lord, let only you see this. बड़ी सच्ची इच्छा के साथ हम प्रभु को देने के लिए कहे, प्रभु केवल तू ही इसको देखने पाए। I have zero desire that anybody should know about my giving. प्रभु मेरे पास शून्य ऐसी इच्छा है कि कोई व्यक्ति मुझे देखे कि मैं कितना दे रहा हूं। I have zero desire to earn a name. This brother is a generous person. और मेरे अंदर शून्य इच्छा है प्रभु कि लोग मुझे ये कहे कि बहुत उदार व्यक्ति है। So we can really work in that area and be completely free from honor seeking in giving. और इस क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं और पूरी तरह से लोगों से आदर पाने की इच्छा से हम पूरी तरह से मुक्त होने का प्रयास कर सकते हैं। It's a good example in the Acts of the Apostles. प्रेरितों के काम के अंदर बहुत एक अच्छा उदाहरण हम देखते हैं Story of Ananias and Sapphira. हनन्याह और सफीरा के संबंध में। When I read this the thought came to me. और इस कहानी को पढ़ने के बाद मेरे ये विचार मेरे मन में आया, They gave and they died. उन्होंने दिया और वे मर गए। Their giving caused their death. उनके देने के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। So we can see the danger in giving wrong way. आप देख सकते हैं उस खतरे को, जब आप गलत रीति से देखते हैं तब उसका खतरा क्या होता है। They gave, holding back something and pretending that everything was given to seek honor. और यहाँ पर उन्होंने दिया कुछ परमेश्वर के भवन में, कुछ अपने आप के लिए रख छोड़ा, झूठ कहते हुए कि सब कुछ दे दिया ताकि लोगों का आदर प्राप्त कर सके। As a result, that caused their death. Both husband and wife died. परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दोनों पति और पत्नी की मृत्यु हो जाती है। We can understand what a dangerous thing it is. और आप सोच सकते हैं कितनी खतरनाक ये बात है। Giving with a wrong motive. और एक गलत एक इच्छा या मनसा या उद्देश्य के साथ देना। Even though giving is extremely important, giving with the wrong motive is extremely dangerous. और ये भले ही अच्छी बात है देना, लेकिन एक गलत इरादे के साथ जब हम देते हैं तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। So may God really help us to seek the Lord in this area. और प्रभु हमारी सहायता करे ताकि इस क्षेत्र में परमेश्वर को हम खोज सके। To be partaker of God's nature in this way, to be generous like God. और हम परमेश्वर के इस स्वभाव के अंदर सहभागी हो सके, जैसा परमेश्वर बहुत ही उदार है वैसे हम उसकी संतान होकर उदार बन सके। At the same time, giving only to be seen by God. और उसके साथ साथ केवल परमेश्वर को ही दिखाने के लिए हम दे। Over this period of years, I learned certain principles और इस सालों के अंदर मैंने इन सिद्धांतों को सीखा है that God wants us to give us wisdom in this area. और परमेश्वर देने के संबंध में हमें बुद्धिमानी या समझ भी देना चाहता As I है। mentioned, my giving should never be to earn a honor for me. जैसे मैंने कहा कि मेरा देना कभी भी किसी व्यक्ति से, लोगों से आदर पाने के लिए नहीं होना चाहिए। And I should never make anybody dependent on me. दूसरा कि मुझे कभी भी किसी व्यक्ति को मुझ पर पूरी तरह से निर्भर नहीं कर देना है। We should encourage others to make their needs known to God and dependent on God. हमें दूसरों को व्यक्तिगत प्रोत्साहित देना चाहे कि वो अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे और निर्भर रहे। Through my giving should not make people depend on me and that in God. और यहाँ पर मेरे देने के द्वारा मैं लोगों को मुझ पर पूरी तरह से निर्भर न रखूं, बजाय कि लोगों को परमेश्वर पर निर्भर रखना सिखाऊं मैं। So I learned my money belongs to the Lord. मैंने इस बात को सीखा कि मेरा पैसा जो है परमेश्वर का है, परमेश्वर के लिए है। In the Old Testament time, once 10% is given, 90% is my money, they could say. पुरानी वाचा के अंदर 10% परमेश्वर को देने के बाद 90% पैसा अब मेरा है। But now 100% of mine, it is given by God, it belongs to Him. और अब नए नियम के अंदर 100% परमेश्वर ने दिया हुआ जो सब कुछ जो है वो पूरी तरह से परमेश्वर का ही है। I don't want to hold it tightly. अब मैं उसको बहुत ही मजबूती से पकड़ के जकड़ के नहीं रखना चाहता हूं। Whenever an opportunity to give needs, और जब मौका आता है, अवसर आता है, जरूरतों के लिए आप दे, I should seek the Lord. अब मुझे परमेश्वर को खोजना है उसमें। Lord, this is your money. प्रभु ये तेरा पैसा है, I have willingness to give. प्रभु मेरे अंदर इच्छा है, मैं देना चाहता हूं। Tell me how much I should give, whether I should give. I don't know. Give me wisdom. और प्रभु तू मुझे बुद्धिमानी समझ दे, प्रभु मुझे कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, प्रभु तू मुझे बता। So God will give us wisdom. प्रभु हमें जरूर बुद्धिमानी समझ को देगा, God will give us peace. प्रभु हमें उस शांति को देगा। May God bless us. प्रभु हमें आशीष दे।